So this is the material requirement planning. Okay, this is the not purely related to SAP material management, but we will understand exactly what is the meaning, how initiate and how it's work like that. Okay, why I'm telling you like so how it initiate. I'm just trying to make you understand. Okay, so how it happen? MRP. After the MRP, what happened? MRP process order. Okay, production order, PRD order. So accordingly, PRD it will create PO. Sorry, PR. After PR, PO. After PA, goods is goods receipt payment, or I can say invoice verification and payment initiation. So this is the steps from where it start. These 2-3 parts are from the PP module. Okay, these 2 part are, I can say, just basically this initiate by production planning department, and these are followed by material management. Okay, these are the PP, production planning. So here you can understand these are the 2 different module are integrated, how it's happen, like and how it works. Okay, so we will understand this. So material requirement planning in SAP material management helps in planning and procuring material required for production or sale. Okay, basically you can say the production. जब कभी भी देखिए, मैंने बोला ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या होता है, उनको MRP क्यों करना? बिकॉज दे विल रिक्वायर द एनफ मटेरियल, दे विल रिक्वायर द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू डू द प्रोडक्शन. बिफोर द प्रोडक्शन दे डू सम प्रोसेस. So first they do MRP, material requirement planning. How much material will required for the production? Because they will require some raw material. They will use raw material. They will schedule the production, or I can say operation. After that, they will make some finished product, and the cycle will be complete. In case suppose if they don't have enough material, or how they can get to know whether they have proper quantity of material or they have enough material to keep going on this production. अगर उनके पास रॉ मटेरियल कंप्लीटली फॉर्म में नहीं होगा, उनका क्या होगा? प्रोडक्शन रुक जाएगा. So if they will if the production will stop, so you can understand now production system will get hampered. So they never want to stop their production, they never want to reduce the production productivity, they never want to reduce the machine downtime, क्योंकि एवरी मशीन, एवरी रिसोर्स, एवरी काइंड ऑफ ऑपरेशन के लिए एक दूसरे से वहाँ पे इंटीग्रेशन पार्ट है. रॉ मटेरियल उनको चाहिए एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, एंड यू आर द सपोर्टिंग एलिमेंट. अगर उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है, देन दे विल इनिशिएट द PR. आफ्टर दैट दे विल डू RFQ, देन PO विल जनरेट. एज पर द PO, once the goods will receive, okay, once the goods will receive, GR will be done, invoice verification will done, and payment initiation will be done. So this is the cycle which for every kind of business you are responsible. So in case if they don't have material, how they get to know how they are going to do the planning? So they do different kind of planning, they do different kind of activity, and then they get to know what activity is happening there. Okay, that is the reason we are understanding material requirement planning. इससे आपको इजीली समझ में आ रहा है कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करते हैं. देन दे कैन कीप their production going on, they can supply the proper material as per the demand.
It ensures that material are available in right quantity at right time and avoid stock out और excess inventory. अब इससे इनको क्या है, ये बोलते हैं कि भाई हमको राइट मटेरियल एट द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस सब कुछ चाहिए. तो क्या है, ठीक है, ना ज़्यादा एक्सेस होना चाहिए ना ज़्यादा कम होना चाहिए. यू हैव टू मेक अ गुड बैलेंस. You have to make good balance between these relation. Then you can establish a good production activity. For that reason, you do, or department are responsible for doing material requirement planning. What are the key feature for the material requirement planning? So demand calculation, stock check, procurement proposal, lead time consideration, reorder pointing, and then so on. What is the demand calculation? To determine the material requirement based on the planned order, sales order or production order. I have told you na, they will determine how much material will required as per their production operation. Then they can make a finished product. So before that they do MRP, then initiate the process order, then production order will create or schedule, and then they can get a make, or they can do mass production, batch production. Okay, if material is available in proper quantity, in proper I can say proper demand, as per their proper demand, so then no need to go for the PR, RFQ, PO, GR, IR, IV or IR. Okay, but if the material will be short, if the demand will be high and material is less, so you have to initiate the PR, RFQ, PO, GR, invoice verification, invoice receipt and payment initiation. So if you are, suppose, because you are doing those two different kind of procurement. One is the direct procurement, means you are going to buy or acquiring or obtain raw material that which will be directly used for the production. Sometime you do indirect procurement. Okay, so here what you do, you basically you do direct procurement. You have to follow this cycle. If you are doing स्क्रीन नहीं दिख रही सर. okay, अभी अभी आ गई. so okay, again I am sharing. Yes, hello, now you can see my screen. हाँ हाँ अभी ठीक है. ओके, थैंक यू. देखो ये मैंने आपको बताया, दिस इज़ जस्ट रॉ पार्ट की, नहीं ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, बट ये ऐसा ही है. देखो, डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट करते हो आप. इफ़ यू आर डूइंग डायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, यू हैव टू फॉलो दिस साइकिल. इफ़ यू आर डूइंग इनडायरेक्ट प्रोक्यूरमेंट, you have to follow this cycle. If you are doing special procurement, you have to follow the different cycle. But here what is the changing, वो क्या चेंजेस क्या हो रहा है, आप मेरे को देखो, ध्यान से देखो कैसे क्या हो रहा है. यहाँ कुछ भी चेंजेस हो रही. आप देखो, मैं बार बार पूछता हूँ कि व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेस. देखो, आप ये 3 तरह के बिजनेस करते हो. अगर आप इस साइकिल को फॉलो करते हो, लेट मी क्लियर एवरीथिंग, अगर आप इसको साइकिल को फॉलो करते हो तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड PR बनाते हो, STANDAR, स्टैंडर्ड PR. RFQ करते हो, ये स्टैंडर्ड PO बनता है, ये स्टैंडर्ड PO बनता है. गुड्स रिसिप्ट होता है, गुड्स रिसिप्ट. उसके बाद इनवाइस वेरिफिकेशन. अब ये बोलोगे यार फिर से P2P साइकिल ये बता रहे हैं हम लोग को. यार आपकी पूरी बिजनेस इसी पे बेस्ड है. इनवाइस वेरिफिकेशन, आफ्टर दैट
यू आर डूइंग इनवाइस रिसिप्ट। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हो, अगर इफ़ यू आर डूइंग, अगर आप ये कर रहे हो तो ये सब कुछ वही रहेगा, बट आपके यहाँ चेंजेस हो जाएंगे। आप इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हो तो ये सर्विस पीआर बनेगा। ठीक है, बिकॉज इनडायरेक्ट में दो तरह की प्रोक्योरमेंट है। ये तो डायरेक्टली यूज होगा आई मीन प्रोडक्शन पर्पस के लिए, और इसमें भी दो तरह के हैं। लो मैं भी चेंज कर देता हूँ। इसमें भी ये है, अगर आप यहाँ पे गुड्स ऐसे एक्सुलरी गुड्स आप क्या करते हो, प्रिक्योर करते हो, तो आपके लिए ये साइकिल रहेगी। सॉरी, ऑक्सिलरी गुड्स आप प्रोक्योर कर रहे हो तो आपकी ये साइकिल रहेगी। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोक्योर कर रहे हो, बिकॉज सर्विस इज ऑल्सो कम्स अंडर द इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, तो दैट विल बी द। अब सर्विस के अंदर में क्या आता है, कुछ बता सकते हैं हमको? रोहित, शिवम, नो। देखिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, इसलिए कि आपने बोला नो। क्यों? देखिए सर्विस में क्या होता है, जैसे आप कोई रिपेयरिंग सर्विस ले रहे हो ना, गैस फिलिंग करवा रहे हो एसी में, एसी में सर जैसे ये कम्युनिकेशन हो गया, सिम हो गई, ये भी सर्विस ही एक तरीके से। नहीं, वो उनका बिजनेस अलग है। उनका जो बिजनेस है दैट इज द डिफरेंट वन। ओके, देयर दैट द बिजनेस इज द टोटली डिफरेंट वन। उस केस में वो थोड़ा सा अलग आपको मीन कि वो रिजल्ट आंसर आएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए एसी रिपेयर नहीं कराते हैं। एसी में मान लो गैस फिलिंग कर रहे हो आप, वो आप नहीं कर सकते। आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में नो वन कैन डू दैट। यू हायर सम वेंडर, यू हायर सम पार्टी सो दैट दे कैन फील द गैस, नाइट्रोजन गैस फिलिंग करते हैं, देन वो क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट में होता है, ये इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। दैट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये समझ लीजिए। ये एक्सुलरी आपके डे टू डे एक्टिविटी के लिए, आपके बिजनेस एक्टिविटी में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू फॉर द डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, ये आप समझ लो। और यहाँ इनडायरेक्ट में दो तरह की प्रोक्योरमेंट कर रहे हो। तो यहाँ अगर आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करो तो दैट विल बी द स्टैंडर्ड पीआर, देन यू विल डू आरएफक्यू, देन दैट विल बी पीओ, परचेज स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट। और गुड्स रिसिप्ट के बाद आप कह सकते हो कि इनवाइस रिसिप्ट और पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जस्ट उसका उल्टा कर रहे हो। आप यहाँ पे ठीक उसका उल्टा कर रहे हो। अरे उल्टा का इन द सेंस कि यहाँ सर्विस के केस में क्या कर रहे हो, सेम चीज़ वही होगा, लेकिन यहाँ सर्विस पीआर होगा, सर्विस पीओ होगा, सर्विस एंट्री सीट बनेगी, इनवाइस वेरिफिकेशन होगा, गुड्स रिसिप्ट होगा। ये है साइकिल। और अगर आप स्पेशल प्रोक्योरमेंट करते हो तो यहाँ पे आपको आता है कॉन्साइनमेंट। उसके अलावा आता है आपका पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट। उसके बाद आपका आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टिंग हो गया। उसके अलावा और क्या है बताइए? स्पेशल में कौन कौन से प्रोक्योरमेंट होते हैं बताएंगे? कंसाइनमेंट, पाइपलाइन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर हो गया। उसके अलावा एक और बचता है, बताइए।
एक दो दो और है सर शायद, बताइए ना। मुझे याद नहीं आ रहा। ये एक एक्सक्यूज नहीं पाइप चलेगा। ये एक्सक्यूज अच्छा नहीं है, रियली मैं बता रहा हूँ, दैट इज़ नॉट गुड। सब्जी सर। इसलिए गुड नहीं है बिकॉज हम लोग देखिए कितनी बार आप लोग को वही चीज़ बताया और वो चीज़ भी नहीं याद हो रही है। हमको ये हमेशा याद रखना है कि व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू डू। आप हमेशा उस बात पे फोकस करिए। आपको देखिए मैंने फोर्थ फेज़ में हर चीज़ के आपको सॉरी फाइव्थ फेज़ में या थर्ड फेज़ में कुछ मैंने आपको अलग अलग पीडीएफ भेजे होंगे जो स्पेशल प्रोक्योरमेंट में स्टॉक ट्रांसफ़र, कंसाइनमेंट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, स्पेशल सर्विस प्रोक्योरमेंट, थर्ड पार्टी सर्विस और पाइपलाइन। सो थर्ड पार्टी और सर्विस अगर एक मैं ले भी लेता हूँ तो वो ही हो जाएगा। आप इसको थर्ड पार्टी ले लीजिए, ओके ओके। पार्टी सर्विस, तो भी वही सेम चीज़ है। उसके बाद आपको बचता है सर्विस प्रोक्योरमेंट। तो सर्विस प्रोक्योरमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया था। तो अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि एमआरपी का केवल और केवल यूज तब होगा व्हेन दे आर डूइंग सम प्रोडक्शन। जब भी प्रोडक्शन कौन होता है, वो ऑपरेशन वाली टीम होती है। और एक क्या होती है, ऑपरेशन की टीम होती है, उसको प्रोडक्शन प्लानिंग टीम बोलते हैं। आपके आपको मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिए। आपका ये पहला बिजनेस ये होता है, दूसरा बिजनेस ये होता है, तीसरा बिजनेस आपका ये है। और मैं आपको बता दूं कि दैट इज़ द फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वे। आपसे इंटरव्यू में यहीं से क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं एंड योर एवरीथिंग इज टोटली डिपेंड्स ऑन इट। आपने यहाँ देखा फॉर द फॉर स्टार्ट द प्रोडक्शन दे आर रिक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन दे आर गेटिंग फिनिश प्रोडक्ट। सो अगर इफ यू विल टेक मटेरियल टाइप, like a material type, if I'm just maybe I have material type, so material type यहाँ पे आपको कितने हो जा रहे हैं। देखो आपको सेमी फिनिश प्रोडक्ट हो गए, आपको फिनिश प्रोडक्ट मिल गए, आपके गुड्स हाइव मिल गए कंज्यूमेबल जो कि कंज्यूम हो रहा है, और उसके बाद आपकी पैकेजिंग मटेरियल हो गए, आपके नॉन स्टॉक मटेरियल हो जो डायरेक्टली किसी चीज प्रोडक्ट मतलब किसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाएगा, वन टाइम यूज़। उसके अलावा आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, ROH बोलते हैं उसको, ROH, रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म ऑफ मटेरियल कुछ ऐसा होता है इसका फॉर्म। एक रॉ मटेरियल हो गया, एक ERSA हो गया, स्पेयर पार्ट्स। क्यों ये डिफरेंट काइंड की मटेरियल आप क्यों ले रहे हैं, आपको डिफरेंट काइंड की मटेरियल क्यों डिसाइड करने पड़ रहे हैं, बिकॉज एज पर योर एक्टिविटी, एज पर योर बिजनेस, यू आर टेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स यू आर इनिशिएट। आपको जैसा इनिशिएशन लेना पड़ रहा है एंड यू आर डूइंग दोज काइंड ऑफ एक्टिविटी, एंड फॉर दोज काइंड ऑफ एक्टिविटी ऑलवेज यू आर रिक्वायरिंग सम आई कैन से मटेरियल। अब स्पेयर पार्ट्स क्या है, मशीनरी में ज़्यादा सारे यूज होते हैं। रॉ मटेरियल क्या है, प्रोडक्शन करने के लिए। इसके बाद ये फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ये देखिए ROH मटेरियल ऊपर ही लिखा था मैंने, लेकिन मैंने केयर नहीं किया। तो कैसे चीज़ें हो रही हैं, आप समझ रहे हो, इस चीज़ों को कैसे यूज किया जा रहा है, आप समझिए। कहाँ मैं बता रहा था यार, कहाँ चला गया, यहाँ MRP भी बता रहा था। यहाँ पे डिफरेंट काइंड की मटेरियल क्यों ज़रूरत पड़ रही, आप यहाँ पे क्यों, क्योंकि वेन एवर यू विल क्रिएट PR, PO, गुड्स रिसिप्ट, इनवाइस रिसिप्ट, those master data should be maintained in those into the system. Even material type is also comes under the master data. It also comes under the master data. ठीक है, आप कोई भी बिजनेस परफॉर्म करोगे, आपके सिस्टम में मटेरियल और मटेरियल का टाइप दैट शुड बी मेंटेन। whenever you are going to create different kind of material, you will require different kind of material type. I am going to show you. अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में आपसे सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश करूँगा, बिकॉज प्रीवियसली जस्ट आई हैव एक्सप्लेन सम बेसिक थिंग्स। ठीक है,
ये तो सर चल ही नहीं रहा, 3 दिन हाँ। से नहीं चल रहा सर। सो इंस्टीट्यूट से हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। सो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि वाई प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग द एमआरपी एंड सडनली वी मूव फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स। वाई? बिकॉज एमआरपी इज द इनिशियल पॉइंट where some different department initiate different department start doing, I mean what I can say, they do some planning। ये प्लानिंग का पार्ट आ रहा है, वो मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहा है जस्ट बिफोर डूइंग द प्रोसेस, जस्ट बिफोर द प्रोडक्शन, जस्ट बिफोर द प्रोडक्शन, जस्ट बिफोर द प्रोसेस दे आर इनिशिएटिंग एमआरपी। सो दिस इज द एमआरपी। और ये साइकिल ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर, if you are going to do the goods receipt, what kind of activity you are going to follow? Activity in the sense I can say cycle. This is end to end cycle for goods receipt, sorry, service procurement. This is the end to end cycle for auxiliary goods procurement. Auxiliary means that not required, no, I can say not related to production, PRD production। ये आपके प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। लाइक अ चेयर, मेज, एसेट, कुछ भी इफ यू प्रोक्यूर गुड्स तो आप प्रोक्यूर कर रहे हो, लेकिन वो दैट विल बी एक्सुलरी, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड ये दैट विल बी रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसीलिए बहुत पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, व्हाट इज द इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, एंड व्हाट इज द स्पेशल प्रोक्योरमेंट, एंड दीज आर द स्पेशल प्रोक्योरमेंट वी डू। So these are the special procurement, and every kind of activity we required some, what I can say, master data we will require। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। Please stay there। We will require master data। वो master data you know ना, what are the different kind of master data? Stable हो जाएगा, don't worry। हेलो, यस सर। सो देखिए आप whenever you are, ये क्या टाइप कर रहा हूँ मैं यार, whenever we are going to do procurement will require the master data। ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो मटेरियल मास्टर हो, वेंडर मास्टर हो, सर्विस मास्टर हो, A to Z मास्टर डेटा, वेंडर मास्टर, मटेरियल मास्टर, उसके देन यू विल रिक्वायर्ड सर्विस मास्टर, then you will require purchase info, source list, you will require outline agreement, contract and schedule agreement। so at least ये तो चाहिए, and batch management should be activated, material valuation should be maintained, material valuation, material master, so that will come under the material master, material valuation and account valuation and account assignment वो होना चाहिए। सो वो क्या होता है, प्री रिक्विजिटेड। तो ये क्या है, ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि यस, हाँ बोलिए अनुज बोलिए। सर पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट में सर मटेरियल टाइप क्या होगा? पाइपलाइन जी, मटेरियल टाइप क्या होगा? पाइपलाइन हाँ जी। पाइपलाइन में पाइप मटेरियल जरूरत पड़ता है, मैं दिखाऊंगा, वो अलग मटेरियल का टाइप होता है, यहाँ होता है जी हाँ, वो पाइप मटेरियल होता है। लेट मी ऐड दिस PIPE, पाइप। पाइपलाइन मटेरियल ये जरूरत होता है ये दीज आर द मास्टर डेटा। ये क्या है आपको, दीज आर द मास्टर डेटा, ये आपको मास्टर डेटा शुड बी मेंटेन इन द सिस्टम। तो यही बिजनेस है, वही आपको चीज़ें करना है, पर हर एक चीज़ को करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड
exactly how you are going to do that. This is the material management exactly. Okay, now we are going to understand more about the key feature of the MRP, because this is the initial things we are doing here. We are doing here material requirement planning. Okay, material requirement planning here we do, and this will done by production department sometime, and here will do by MM department sometime. Okay, so demand calculation, determine the material requirement based on planned order, sales order and production order. So these are the benefits we get, or we can say this is the key features. Stock check the current stock level and calculate the shortfall. MRP रन करने से क्या होता है कि आपको वो करंट स्टॉक चेक करता है, और जो भी शॉर्टफॉल आइटम होता है उसके लिए क्या करता है वो प्रोसेस ऑर्डर से परचेज ऑर्डर, प्रोसेस ऑर्डर से परचेज इक्वेशन से परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर से गुड्स रिसिप्ट का वो प्रोसेस डायरेक्टली हो जाता है MRP में. प्रोक्योरमेंट प्रपोजल, क्रिएट प्लान्ड ऑर्डर फॉर इन हाउस प्रोडक्शन और परचेज इक्वेशन फॉर एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट. आपको मैंने बोला ना कि आप व्हेन यू विल रन द MRP मीन्स व्हेन द PP गाय विल रन द MRP, if the material will be shortfall, it will create planned order. As per the planned order, it will go for the purchase requisition or planned order accordingly. Lead the time consideration. इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है, टाइम में आपको ज़्यादा बेनिफिट फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको. टेक इनटू अकाउंट प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन लीड टाइम में आपको काफ़ी बचत मिलती है. रीऑर्डरिंग पॉइंट, ट्रिगर प्रोक्योरमेंट व्हेन स्टॉक फॉल अ सर्टेन लेवल. रीऑर्डरिंग पॉइंट का मतलब होता है आपने एक फिक्स कर दिया कि नहीं, जब भी ये मटेरियल 100 क्वांटिटी से नीचे बिलो डाउन जाएगा, ये सिस्टम विल क्रिएट द PR परचेज मीन्स परचेज इक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट, ये स्टेप स्टार्ट हो जाएगा. ऑटोमेटिक सिस्टम में वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगे. तो दैट आर द फीचर ऑफ द MRP. MRP प्रोसेस फ्लो इन MM. हाउ वी डू MRP का जो की मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो प्रोसेस करते हैं उसका फ्लो क्या है इन SAP MM. सो मास्टर डेटा शुड बी मेंटेन इनटू द सिस्टम. मास्टर डेटा शुड बी मेंटेन इनटू द सिस्टम. आप बोलोगे ये बिल ऑफ मटेरियल और वर्क सेंटर क्या है या राउटिंग क्या है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू यू. ओनली यू विल क्रिएट मटेरियल एंड दिस विल बी क्रिएट बाय द प्रोडक्शन गाइज, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग guys or operation team I can say, and source list you only create. Means these 2 master data you will create, remaining these 3 master data will created by the production planning team. So this is how you can understand, this is the integration of SAP MM and PP. Okay. When you will define the MRP parameter, you will get these kind of fields there. You will get these kind of field. I will show you in MRP data view. When हम लोग क्या है ना, जब हम मटेरियल क्रिएट करते हैं तो आपको देखेंगे ना वहाँ पे कई डेटा रहता है, टैब्स रहते हैं, टैब्स मैं कह सकता हूँ टैब्स रहते हैं. टैब्स में क्या होता है, एक बेसिक डेटा व्यू होता है. आप लोग बात करते रहिए, कोई टेंशन नहीं. अगर आप कुछ चीज़ों को बोलेंगे नहीं, दैट विल बी मेक डिफ़िकल्ट फॉर यू. बेसिक डेटा व्यू 2 होता है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, परचेजिंग होता होगा, आपने देखा होगा. उसके नीचे आपने क्या देखा है, जनरल डेटा स्टोरेज, STRO स्टोरेज 1 और 2 करके होता है, ठीक है. वहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा. फिर उसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग व्यू 1 2 होता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें आपको MRP 1 2 मिलता है. MRP 1 MRP 2 ये रहता होगा. मटेरियल आपने क्रिएट किया होगा तो यू हैव लुक एंड फील कि नहीं ये दिखता है वहाँ पे, और आपको फील हुआ कि नहीं इसका क्या यूज है. MRP 4 उसके बाद देन यू हैव फाइंड समथिंग, अकाउंटिंग व्यू 1, अकाउंटिंग व्यू 2, राइट. ऐसा होता है ना. तो ये क्या है, ये टैब्स होते हैं. उस टैब्स में सारा डिटेल हम फिल करते हैं, एंड दिस ऑल्सो कम्स अंडर द मटेरियल मास्टर डिटेल. ये मटेरियल मास्टर डेटा जब वेन क्रिएट करते हो ना, मटेरियल मास्टर में ये टैब्स होते हैं. ये क्या होते हैं, टैब्स होते हैं. ये इतने सारे टैब्स होते हैं. सो देयर इट विल रिक्वायर्ड. मटेरियल टाइप हमको मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, लॉट साइजिंग मेंटेन करते हैं, प्लानिंग स्ट्रेटजी मेंटेन करते हैं. सो व्हेन मीन्स वी डिसाइड, अगर इफ़ यू आर क्रिएटिंग, सपोज इफ़ यू आर क्रिएटिंग ROH material, if you are creating ROH material type,
then you will decide whether you are going to keep this material as a MRP or not, or whether you are going to keep this material for purchasing or not, because that is there are different kind of I can say tabs as per your requirement. even कॉस्टिंग का टैब्स होता है यहाँ पे, कॉस्टिंग के टैब्स होते हैं, 1-2 टैब्स होते हैं, 2 टैब्स होते हैं कॉस्टिंग के भी, जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड प्राइस और मूविंग प्राइस भी मेंटेन करने होते हैं। तो देखो कि एक मटेरियल मास्टर क्रिएट करने में आपको क्या क्या डिटेल्स की ज़रूरत पड़ रही है, और वो डिटेल्स का फर्दर कहाँ पे यूज़ है वो आप समझो। when you are creating ROS material, whether you are going to decide, means here you are deciding whether you are, जब आप इसको सेलेक्ट करते हो तो ओनली दोज इन्फॉर्मेशन ओनली कम व्हेन यू आर क्रिएटिंग द मटेरियल। ये टैब्स का क्या यूज है, जब आप मटेरियल टाइप क्रिएट करते हो, ये टैब सेलेक्ट करते हो, प्लांट लेते हो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल डेटा लेते हो, यहाँ पे क्या करते हो आप प्लांट लेते हो, आप स्टोरेज लोकेशन लेते हो, STRO स्टोरेज लोकेशन, और उसके बाद आप वैल्यूएशंस भी लेते हो समटाइम, वैल्यूएशन सो वैल्यूएशंस लेते हो। तो ये क्या है, ये लेने के बाद, ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद आप, और यहाँ पे आप लेते हो मटेरियल की टाइप, मैं इसको चलो यहाँ पे रख लिया, इंजीनियरिंग मटेरियल की इंजीनियरिंग टाइप जैसे लेते हो आप, मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेते हो ना, इंडस्ट्री टाइप, नॉट मटेरियल, इंडस्ट्री टाइप। ये सारी चीज़ें लेने के बाद ये आप सेलेक्ट करते हो, क्यों, दैट इज़ द डिफरेंट पर्पज फॉर यू, that is the reason you are taking this kind of detail, and you are here you are maintaining some different detail। तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, वो डोज डिटेल वी मेंटेन रिलेटेड टू MRP, इसीलिए MRP के टैब्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिटेल्स वी मेंटेन इन डिफरेंट टैब्स। MRP रन करने के लिए जो टी कोड्स की जरूरत होती है, MD01, MD02, MD03, MRP run for all material, MRP run for single material, MRP run for single material in plant। So these three are the different MRP related T codes, and these are the T codes for view MRP result: stock requirement list MD04, planned order MD12, and purchase execution MA51. These three T codes required to check MRP result. And how we can convert MRP related things like a planned order to production order, or purchase execution to purchase order. So here these are the T codes. Like suppose system means you have run the MRP and system have generated the process order, and from the purchase order how you are going to, means how you are going to convert, planned order to production order, because I have told you na, this is the process order, this is the PRD order, production order. So from here to here you just convert it. When you will run this, system will generate the MRP, means MRP will run and process order will generate. After that production order you can convert from with reference to process order. After that you can convert purchase execution to purchase order by using this T code. So here we have some flexibility. And what are the different kind of MRP type in SAP MM? So in SAP MM material types, MRP type is PD, material requirement planning, that is the standard MRP method that calculates net requirement based on the demand and stock। मतलब कि आपकी डिमांड है 10 क्वांटिटी की और स्टॉक में कितनी अवेलेबिलिटी है, वो देन एवरीथिंग कैलकुलेट, एंड दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड MRP मेथड। सेकेंड वन इज MRP टाइप VV, मीन्स दैट विल डिसाइड द रीऑर्डरिंग पॉइंट। आपने एक रीऑर्डरिंग पॉइंट फिक्स कर रखा कि आफ्टर जस्ट इफ मटेरियल विल शॉर्टफॉल फॉर 1 क्वांटिटी 2 क्वांटिटी just below down 100 quantity, because you have set it down reordering point as a 100 quantity, आप 100 एक पॉइंट पे रखा है, और क्या हो रहा है कि जैसे उसके बिलो डाउन आएगा देन इट विल जनरेट द, ये अपने 100 क्या है, आपके रीऑर्डरिंग पॉइंट है। अब इससे कर सपोज कि किसी प्रोडक्शन में आपने यहाँ से 5 क्वांटिटी लिया, सो मतलब क्या है, 5 क्वांटिटी लेस हो गया, जैसे ही 95 क्वांटिटी होगी सिस्टम विल generate the procurement proposal when stock fall below the reorder point। reorder point का मतलब है कि इस पॉइंट के बाद ही आपका तुरंत MRP रन होगी, और MRP के बाद वो क्या होगा, प्रोसेस ऑर्डर से प्लान्ड ऑर्डर से प्रोडक्शन ऑर्डर, ऐसे करके वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड थर्ड वन इज MRP टाइप 1 R1, टाइम फेज प्लानिंग, प्लान मटेरियल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ये टाइम इंटरवल पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर देंगे, उसी टाइम पीरियड में ये क्या होगी, प्लानिंग इसकी होगी मटेरियल की, और उसी पीरियड में आप उसके लिए प्रोक्योरमेंट रिलेटेड आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे।
देन कंजम्पशन बेस्ड प्लानिंग, यूज पास्ट कंजम्पशन डेटा टू डिटरमाइन द फ्यूचर नीड। आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई लास्ट मंथ में मैंने कितना मेरे को कंजम्पशन हुआ, एंड एज पर द कंजम्पशन नीड यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द फ्यूचर नीड। सो एज पर द बिजनेस स्ट्रेटजी वी फॉलो डिफरेंट काइंड ऑफ MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट टाइप। ये मटेरियल की रिक्वायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए वी हैव 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड और 4 डिफरेंट काइंड ऑफ टाइप्स। सो इस तरीके से हम MRP कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो ये क्या करता है? रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, इट मीन्स प्रिवेंट ओवर स्टॉकिंग एंड अंडर स्टॉकिंग। मतलब ये प्रिवेंट करता है ज़्यादा एक्सेस स्टॉक भी नहीं होने से, और लेस स्टॉक से भी आपको हेल्प करता है। ओके, लेस स्टॉक भी नहीं होने देता और ओवर स्टॉक भी नहीं होने देता। मीन्स इट कीप बैलेंस बिटवीन लेस स्टॉक एंड ओवर स्टॉक। ऑप्टिमाइज प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन, इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल बिकॉज दे रिक्वायर्ड ऑलवेज मटेरियल फॉर डूइंग प्रोडक्शन। ऑटोमेट प्लानिंग प्रोसेस, रिड्यूस मैनुअल वर्क एंड एरर। मैनुअल वर्क में आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे मैनुअल वर्क में यू टेक मच टाइम, यूजुअली यू टुक मच टाइम टू डू सब प्लानिंग, और वो एक्सेल सीट पे आप कैलकुलेट करते रहते हो, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कभी एरर आ जाता है, आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम, नो, दिस प्रोवाइड यू विजिबिलिटी। इम्प्रूव सप्लाई चेन एफिशिएंसी, सो अलाइन प्रोक्योरमेंट एंड प्रोडक्शन विद डिमांड। सो दीज आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग if you use MRP, material requirement planning for material management. Any question? Because these are the topics, at least you have to understand what exactly we do. So I am not going to open the SAP system. Why? Because we are not unable to log into the SAP. So now I am moving on the next conclusion. Material requirement planning in SAP MM is a vital, means play crucial role, and it is a vital process that ensure the availability of material for production, sales, while optimizing inventory level by automating the demand forecasting, procurement proposal, and stock management. MRP reduce manual effort, minimize cost, enhance supply chain efficiency. मीन्स क्या होता है, आप MRP यूज करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पैरेलली सारी चीज़ें सीक्वेंस के थ्रू होती हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करते हो। ओके, इम्प्लीमेंटिंग MRP इफेक्टिवली हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ स्मूथ वर्क फ्लो, प्रिवेंट मटेरियल शॉर्टेज, improve overall productivity. So in next session we will understand how we can use the MRP. Okay, so after that the topic is for us is the purchase requisition, because these three are related to MRP. MRP after the process order, after the process order that will become the planned order, after the planned order it will become the, I can say, production order. Okay, so these are the order. Okay, now I am coming for the PR. What is the PR? We will get understanding in detail. So introduction first. A purchase requisition PR in SAP MM is a document. आपसे इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय परचेज रिक्विजिशन एंड व्हाट इज द पर्पज टू क्रिएट द परचेज रिक्विजिशन. यहाँ पे आपको यू हैव टू गिव द आंसर बाय दिस डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन. So a purchase requisition in SAP MM is a document used to request the purchase of material or service. It is the first step in procurement process, helping organization to track and manage purchasing need. आपको ये क्या हेल्प कर रहा है? आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे कि प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को ट्रैक करने के लिए, प्रोक्योरमेंट के नीड को ट्रैक करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करता है? इट हेल्प्स, आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. PR कैन बी क्रिएटेड मैनुअली और ऑटोमेटिकली एंड इट इंश्योर दैट ऑल परचेज आर ऑथोराइज एंड प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड. ये इट इज आई कैन से कि इट इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट. परचेज रिक्विजिशन जो होता है ना, दैट इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट विच डिपार्टमेंट यूज ओनली फॉर द इंटरनल पर्पज. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अ परचेज रिक्विजिशन इन SAP MM इज अ डॉक्यूमेंट यूज टू रिक्वेस्ट परचेज और परचेज ऑफ मटेरियल एंड सर्विस. मीन्स जब कभी भी इट्स नॉट, आपको ये ऐसा नहीं है कि नहीं आप यू आर गोइंग टू डू दैट, सो आपको ये करना है कि आप क्या करोगे कि PR नहीं क्रिएट करोगे. PR इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट
for internal tracking आपके, because it is a, I can say just a proof of communication. अरे मैं कह रहा हूँ कि अनुज ने मुझे रिक्वायरमेंट दिया, आई एम वर्किंग इन इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, बट अनुज ने मेरे को दिया, बट मैनुअली इफ दे विल टेल कि नहीं आप प्रोक्योरमेंट कर दो, देन हाउ आई कैन इनिशिएट? नो, आई नीड सम written document, so that is the written document. Okay, after that different kind of PR we can create. Okay, so how many different kind of PR we create? So as I have told you now, when you will do direct procurement we will create a standard PR. When we will do indirect procurement we will create a standard PR for auxiliary goods procurement, and service procurement we will create service PR. So here you can see standard purchase requisitions, subcontracting, stock transfer, consumable means that is the consumable, like a goods जो डायरेक्ट आपको प्रोक्योरमेंट में तो नहीं, प्रोडक्शन में तो नहीं कंज्यूम हो रहा है, बट somehow how it is consumed for the different kind of activity in industry or organization. और उसके बाद then service requisitions. So here you can understand as per the different business we create different kind of purchase requisitions. Standard purchase requisition, what is it? So for regular procurement of material and service we use standard purchase requisition. Subcontracting, for outsourcing work where raw material are provided to a vendor, and then vendor will start work on the raw material or assembly, and once he finish the work he will replace those assembly or I can say parts to customer. So that is comes under the subcontracting. Third one is the stock transfer. So for transferring stock between plant and or storage location, okay, because I have told you now, when we do some stock transfer from one storage location to another storage location in the same company or sometime other or company code, so that is the stock transfer order, that is comes under the special procurement. Consumable requisitions, item for use internally, means if suppose you are procuring table, chairs, AC, cooler, ceiling fan, that is used for only employee, not for the production, that is a consumable requirement. Sometimes we procure A4 size papers, printer, monitor, okay, glass, bottle, ऑफिस यूज के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रोक्यूर की जाती है, दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो वी कैन कंसीडर एज ए कंज्यूमेबल. ठीक है, उसका रिकॉर्ड का मेंटेन हम नहीं कर सकते ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स दैट इज नॉट दोज थिंग्स विच कम्स नॉट कम्स अंडर द एसेट एज ए एसेट फॉर अ कंपनी, वी कैन कॉल इट एज ए रेवेन्यू पार्ट और कंज्यूमेबल. ओके, service requisition. So for external service means when we are going to take service from the vendor for repairing works, that is known as a service requisition. So here you can understand ना, आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करो, आप पीआर क्रिएट कर रहे हो, दैट इज नोन एज द प्रोक्योरमेंट. अब यहाँ पे कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे मीन्स कंसाइनमेंट प्रोक्योरमेंट करो तो कंसाइनमेंट पीआर होगा, वो पाइपलाइन प्रोक्योरमेंट करो तो पाइपलाइन पीआर होगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हो तो सब कॉन्ट्रैक्ट पीआर होगा. ओके, आप थर्ड पार्टी सर्विस कर रहे हो तो थर्ड पार्टी सर्विस में सर्विस पीआर होगा. ये स्टॉक ट्रांसफर ऑर्डर के केस में तो स्टॉक ट्रांसफर पीआर होगा. और आरएफक्यू आप सबके लिए करोगे. आरएफक्यू अब क्यों कंसाइनमेंट में आप क्या कर रहे हो, किसी वेंडर से हेल्प ले रहे हो, पाइपलाइन में भी आप कर सकते हो, लेकिन आप पाइपलाइन में कभी कभी चीज़ें आपको डायरेक्टली मिलती हैं तो भी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी, स्टॉक ट्रांसफर में आरएफक्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, और थर्ड पार्टी में आप कर सकते हो, और देन पीआर भी आप बना सकते, सॉरी पीओ. तो अब ये सारे टर्म्स आपको समझना है कि ये चीज़ें हैं क्या, ये सारी चीज़ें क्या हैं. नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट. अब यहाँ पे सोचो कि मीन्स लेट्स सी कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग्स. क्रिएशन ऑफ परचेज रिक्विजिशन. सो वी यूज ट्रांजेक्शन ME51 टू क्रिएट द परचेज रिक्विजिशन. सो आपको यहाँ बता दूँ कि वी यूज टी कोड फॉर परचेज रिक्विजिशन एज ए ME51, एंड ये हमेशा आई कैन से कि यूज़ होता है. ठीक है, ये परचेज रिक्विजिशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है. चाहे आप कोई भी प्रोक्योरमेंट करो, आप कुछ भी करो, आपको हर जगह यही यूज होगा. टी कोड्स विल बी कॉमन. आफ्टर दैट, सो दीज आर द सम स्टेप्स वी कैन फॉलो टू क्रिएट द परचेज रिक्विजिशंस. की फील्ड्स इन परचेज रिक्विजिशंस. सो लेट्स सी. Go to SAP Easy menu access, enter the T codes in command field. After that, select the document type, select the material, quantity, delivery date, plant in storage location, purchase group, account assignment, and click and save.
and then a purchase means the system will generate a PR. A unique number will be generated for the by the system for the particular PR. Key field document type. So define the nature of the requisition. Document type का मतलब क्या है? अब देखो, आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हो तो यहाँ स्टैंडर्ड पीआर कर रहे हो, आप यहाँ पे एक्सुलरी गुड्स कर रहे हो तो भी स्टैंडर्ड पीआर कर रहे हो, सर्विस गुड्स सर्विस वर्क ले रहे हो ना, सर्विस ले रहे हो तो सर्विस पीआर, ये दैट इज द डॉक्यूमेंट टाइप. ये क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप विल डिसाइड और विद द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट टाइप easily you can identify which kind of procurement exactly you are doing. Okay, that will help you to do the procurement activity. आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सा पीआर कर रहे हो? आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, आप इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हो कि स्पेशल प्रोक्योरमेंट कर रहे हो. सो फॉर द एवरी पीआर, फॉर एवरी पीओ, द डॉक्यूमेंट टाइप विल डिसाइड कि नहीं आप कौन सा पीआर कर रहे हो. वो डॉक्यूमेंट टाइप का आप टाइप क्रिएट करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे. ठीक है. मटेरियल नंबर, ओके, दैट इज द मटेरियल कोड. क्वांटिटी, डिलीवरी डेट, आइटम कैटेगरी. यस, आइटम कैटेगरी मीन्स determine if the material is subcontracting or service. So when you will create the purchase, requisition in service, so here you have to select the item category. So that item category will help you to identify whether you are doing some service activity work or subcontracting. Okay, so we will understand in the system tomorrow. Automatic creation of purchase requisitions means PR can be created automatically in following cases. इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा. So when we run the material requirement planning means when we run MRP, auto generate PR for the stock shortage. This is the one way. After that, from the maintenance order in PM module for the spare parts required in maintenance, we can automatically means system will generate the PR. In production planning for raw material in manufacturing, we can create means from the purchase how I can say, from here production orders to PR directly we can create, and directly यहाँ से भी means from the MRP directly we can I can say create yes, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इससे PR क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, बट यस, ये हम कर सकते हैं. तो दीज आर द थ्री वे. आफ्टर दैट परचेज रिक्वेजिशन अप्रूवल. हेलो टीम, आप लोग कुछ समझ में आ रहा है? जस्ट आई एम वर्बली कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग एंड जी सर. चीज़ें क्लियर हो रही है ना? जी जी सर. ओके, थैंक यू. So yes, purchase requisition approval. So for every purchase requisition you will require some approval. So to get approval on the purchase requisition, or even I can say in case of the purchase order, we have to activate the or configure the release strategy. So release strategy will provide you flexibility to getting approval over the purchase requisitions. So release group, so group similar type of the requisition means release group will decide कि किस तरह का परचेज रिक्वेजिशन कर रहे हो, परचेज क्रिएट कर रहे हो, परचेज के टाइप्स क्रिएट कर रहे हो. रिलीज कोड, आइडेंटिफाई द अप्रूवर मीन्स कौन, अगर मान लो कि वहाँ पे 3-4 अप्रूवर हैं, so how we can decide कि which one have done the release part, who have done the approval, given the approval on that, or who have released the order or purchase requisition. So release code will identify means help to identify the who have done this activity. Release status, so controller whether a PR is a blocked or release, we can get it from here. Release condition, criteria for approval, and workflow integration, automate the approval process by sending notification to approver. अब workflow से क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी कि जो भी रिक्वेजिशंस पे या परचेज ऑर्डर पे जो भी रिलीज करता है या जो भी यूज़र होता है उसको अप्रूव करता है, so system generated email और कुछ PR related some information will be containing in those email and you will get receive a email. So ये यहाँ से आपको मिलता है workflow integration से. So these are the some information about the purchase requisition approval, and these are some T codes for the release strategy like a CL20N, OMGQ,
ME54N. So this is a T code to create, or release, approve a purchase executions. And these are two T codes for the release strategy and setup release strategy for PRs. After that, how we can convert the purchase execution to purchase order? So we can use T code ME21N, because I am going to tell you to create a purchase order you have to use ME21N is the T code. Always this will be the standard. अब आप बोलोगे सर दैट इज़ अ डिफिकल्ट टू रिमेंबर, सो नो नीड टू मच वरी, व्हेन यू विल डू सम प्रैक्टिस सो वो सब हो जाएगा. ये हर जगह कॉमन रहेगा टी कोड, चाहे आप कुछ भी करो. बट ये यहाँ पे जो होता है ना, मैंने आपको बोला ना, डॉक्यूमेंट्स टाइप जो होंगे ना, डॉक्यूमेंट्स टाइप वो डिसाइड करेंगे कि आप क्या कौन से प्रोक्योरमेंट कर रहे हो. ये बात हमेशा याद रखिए, आपका डॉक्यूमेंट टाइप ही डिसाइड करेगा कि आप स्टैंडर्ड पीआर बना रहे हो या कौन सा पीआर बना रहे हो. ठीक है, एक ये हो गया. आफ्टर दैट these are some T codes for purchase execution like ME5A, ME5K, ME5J, ME52N and ME53N. So we will see every T codes in system tomorrow one by one. These are the important T codes related to purchase requisitions. ME51 for create, ME52 for change, for display, for release, and these are the list for purchase requisitions, and these T codes for the release strategy, convert PR to PO, and this for the check stock of the material. Integration of purchase requisition with other department. So we can say SAP PP, production planning, auto PR for raw material. So this is the integration of PP and PMM. If PR is getting create with the help of the maintenance order, so then this is a integration of PM and MM. And track expense and cost center, that is integration of finance and controlling with the MM. And warehouse management, manage inventory and stock movement, that is also integrated with MM and WM, warehouse management. So this is the just conclusion. The purchase requisition PR in SAP MM is essential for managing and controlling procurement. It helps in streamline purchasing, ensure approval through release strategy and reduce error. Understanding the process is key to maintaining smooth and efficient purchase information. Okay, so this is the things. अब उसके बाद क्या पार्ट आ रहा है? हमने अब तक पढ़ा कि MRP क्या है, and then we have moved for the PR. And what is the next? We have the, for every kind of different businesses we do RFQ. So what is the RFQ? Request for quotation in SAP material management. What is it? A request for quotation, RFQ, is a procurement document used in SAP material management to invite supplier to submit price quotes for a material or service. क्या होता है जब हम बीड ओपन करते हैं, या उसको बीड ओपन करना दैट इज फ्रॉम योर साइड, बट व्हेन यू डायरेक्टली रीच आउट टू सम ऑफ द सप्लायर to get some information about the prices for which material which you are going to do some procurement, that is known as a RFQ. आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन करते हो, मीन्स आप उनसे पूछते हो कि मेरे को इस मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना है, व्हाट इज द प्राइस फॉर. आप उससे पूछते हैं एंड दे गिव सम कोटेशन कि नहीं, वो एक डॉक्यूमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसमें सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन होते हैं. ओके, इट इज एन एसेंशियल स्टेप इन प्रोक्योरमेंट साइकिल when an organization wants to compare different vendor before making a purchase decision. आप हमेशा डिफरेंट काइंड के वेंडर्स के कोटेशन को क्या करते हो, कंपेयर करते हो. आफ्टर द कंपेयर यू डिसाइड कि आपको किसके अगेंस्ट में यू आर गोइंग टू क्रिएट द परचेज ऑर्डर. ओके, सो दैट इज द रीजन आई हैव कीप्ट just before PO, I have kept everywhere as a RFQ. Okay, now I'm coming here. When RFQ use? When purchasing new material or service from the external vendor, when there is no existing contract or price agreement with the supplier, then in these cases, and when comparing multiple vendor for the best price and terms, we can do. When negotiating better delivery schedule and condition, we can do RFQ. Not only for the price, for these kind of situation we can do the RFQ. After that, these are the T code. ME41 is the T code to create the RFQ. RFQ create करते हैं, then standard और सब कॉन्ट्रैक्टिंग
मतलब सभी में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन है। एंड द टी कोड इज द ME41. दिस इज द फॉर द क्रिएट। ओके, दिस इज फॉर द क्रिएट। और ये आप ये समझ लो कि यहाँ हर जगह यूज होगा, और ये जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है सब जगह ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप समझ लो कि टी कोड्स आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आज से आप ये समझ लो कि टी कोड्स आपका क्लियर होगा, क्योंकि मैं क्लियरली दिखा रहा हूँ आपको क्रिएट पार्ट। और चेंज में ME52N, ME42, ME21, सो ये है ME22। और एक आप याद रखना, मटेरियल मैनेजमेंट के टी कोड जो भी स्टार्ट होते हैं वो ME से स्टार्ट होते हैं। मतलब ऑल दोज टी कोड विच स्टार्ट फ्रॉम ME दैट विल बी द मटेरियल मैनेजमेंट। ये कॉमन होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, टी कोड फॉर चेंज और टी कोड फॉर टेक प्रिंट। RFQ को प्रिंट करने के लिए ME98 इज द टी कोड टू टेक अ प्रिंट फॉर RFQ. Okay, and maintaining vendor quotation, we have T code ME47. Once the vendor will respond, their price and condition are entered in SAP, and each quotation is linked to their original RFQ for compare. ठीक है, और कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो कोटेशन मेंटेन करते हैं एंड देन वी कंपेयर बाय यूजिंग दिस टी कोड। ठीक है, सो इन प्रैक्टिकल पार्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी डू and we can convert RFQ to purchase order by using T code, this one. ठीक है, and these are the some important T codes for RFQ and maintaining the quotation, compare the quotation, take a print a quotation and convert quotation from quotation to purchase order. So these are the T code. And what is the, I can say real time example, like a hospital need a buy a lab reagent from different supplier. The procurement team, what they will do, they will create RFQ in ME41 and select 3 vendor. Vendor submit their price, delivery condition, team enter the quotation in ME47. Using ME49 they compare vendor and select the best offer, means किसका price best है, who is providing in the same material with very less price, and finally they issue the purchase order to respective or selective vendor. So these are the steps what exactly we do when we use RFQ. ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने कर लिया, नहीं, these steps we follow. और any of team, this is the standard, actually we follow this, everyone follow this. पहले आप RFQ क्रिएट करते हो और सेलेक्ट करते हो वेंडर्स, अकॉर्डिंगली आप वेंडर के प्राइस एंड प्राइस की कंडीशन, डिलीवरी की कंडीशन मेंटेन करते हो, देन कोटेशन मेंटेन करते हो. आफ्टर दैट यूजिंग दिस यू आर कंपेयरिंग दोज डिटेल एंड फाइनली आप डिसाइड करते हो कि किसका लेस प्राइस है, उसको आप उस सेलेक्टेड वेंडर को क्या करते हो, पीओ क्रिएट करते हो. दैट इज द यूज ऑफ द RFQ. Advantage of RFQ in SAP MM. So standardized vendor comparison, cost reduction, automation and efficiency and vendor relationship. So इससे आपको टाइम सेविंग्स भी होता है, कॉस्ट भी सेविंग्स कर रहे हो आप, चीज़ें आपको फ्लेक्सिबल हो रही हैं, ऑटोमेटेड चीज़ हैं, और बेटर रिलेशनशिप भी आप मेंटेन कर रहे हैं. बिकॉज एवरी टाइम यू आर, इफ़ यू आर गेटिंग सर्विसेज और इफ़ यू आर एक्वायरिंग मटीरियल फ्रॉम द सेम वेंडर, in case you are getting means you are going to get means a good relation with or building good relation with the vendor. So these are the advantages. And after that, the RFQ process in SAP material management help business to get best price and terms by comparing multiple vendor quotation. It ensure cost saving, transparency, efficiency in procurement. By following a structure process, company can make better purchasing decision and improve vendor relationships. So this is how we have understand these 3 steps: MRP, purchase executions and RFQ. Now we can move forward, or what you are looking for. Hello everyone. Hello. जी सर. Can I take 30 minutes more? वही करा लेना सर. Okay. So I am just stopping at this point, and we will discuss this tomorrow. Okay. In tomorrow session we will discuss, or we will start from the purchase order. Okay. And after the purchase order, okay, we will go for the
I can say goods receipt and invoice verification. So those detail you have, please try to go through this document. Okay, and then we will come for the, I can say, practical. Now I'm stopping the recording.